زہرا پاک مولا علی حسنین کریمہ کی چادر میں لیا اور کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر۔ چادر میں یہ 5 تھے، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت پڑھی۔ اب اس آیت کو تلاوت کر کے سرکار نے چادر میں ان ہستیوں کو لے کر یہ بتایا کہ اسے محض چادر نہ سمجھنا، اللہ اکبر، اسے محض چادر نہ سمجھنا بلکہ چادر والوں کے لیے یہ آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں چادر ہے، حقیقت میں طہارت کا قلعہ ہے، اللہ اکبر، طہارت کا ایسا قلعہ ہے جس میں ناپاکی نہیں جا سکتی، یہ پاکیزہ رہیں، پاک ترین رہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی شہادت کا سرکار نے پہلے تذکرہ کیا۔ ہر شہید کی شہادت کا ذکر اس کی شہادت کے بعد ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ نے کبھی کوئی ایسا شہید سنا کہ وہ ابھی شہید بھی نہ ہوا ہو اور اس کا شہادت نامہ پڑھا جا رہا ہو؟ اللہ اکبر، تاریخ انسانی میں آپ نے کبھی ایسا شہید نہیں سنا ہوگا کہ جو شہادت سے پہلے جس کا شہادت نامہ پڑھا گیا ہو۔ حسین واحد شہید ہیں، ابھی ماں کی گود میں ہیں، نبیوں کا سردار شہادت نامہ پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ذکر شہادت کر رہے ہیں۔ تو ذکر شہادت کرنا یہ بدعت نہیں، سنت رسول صلی اللہ اکبر، اور ذکر شہادت کرنا سنت ملائکہ ہے، اس لیے کہ فرشتہ آیا کربلا کی مٹی لے کر، اس نے سرکار سے عرض کی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین شہید ہو گئے، اور یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں حسین شہید ہوں گے۔ تو نبیوں کے سردار نے جب ذکر کیا صحابہ سے تو ذکر شہادت سنت رسول بنا، اور نبی نے جب فرشتے سے سنا تو سنت ملائکہ بنا، فرشتے نے جب اللہ سے سنا تو سنت خدا بنا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ذکر شہادت اللہ نے کیا، فرشتوں نے کیا، نبیوں کے سردار نے کیا، اور پھر سرکار نے کربلا کے واقعے کو پیشگی بیان فرمایا۔ 13 روایات ہیں الگ الگ مواقع کی، ان کو جمع کرنے کی تعداد 13 ہے۔ اب ان کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث جس میں سرکار نے فرمایا کہ جب 60 ہجری کا اختتام ہوگا، 61 ہجری کا آغاز ہوگا، حسین شہید ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت، اللہ اکبر، حسین جب شہید ہوں گے اس وقت کم عمر آوارہ حاکم ہوگا، اللہ اکبر، کم عمر آوارہ حاکم ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث، جب حسین شہید ہوں گے اس وقت کے حاکم کا خاندان بنو امیہ ہوگا، اللہ اکبر، بنو امیہ ہوگا۔ ایک اور حدیث، حسین جس مقام پر شہید ہوں گے اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، آپ جملے پہ غور کیجیے، اللہ یہ اکبر، نہیں کہا اللہ اکبر، وہ اس جگہ کا نام کربلا ہے، یہ نہیں کہا کہ کربلا کے مقام پر حسین شہید ہوں، اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی بات کر رہے تھے اس وقت کربلا کا نام کربلا نہیں تھا، اللہ اکبر، اس وقت کربلا کا نام نینوا تھا، اللہ اکبر، نینوا۔ اسے بعد میں کربلا کہا گیا۔ تو نبی جب اطلاع دے رہے تھے اس وقت جگہ کا نام تھا نینوا، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ نینوا پہ شہید ہوگا، اس لیے کہ جب بات کر رہے ہیں جگہ کا نام ہے نینوا، لیکن جب حسین شہید ہوں گے اس وقت جگہ کا نام ہوگا، اسی جگہ کا نام ہوگا
करबला, तो नबी ने कहा हुसैन जहाँ शहीद होंगे अल्लाह। उस जगह को करबला कहा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आप देखिए नबी की फरासत। फिर सरकार ने वो मट्टी फरिश्ता लेकर आया था, वो मट्टी 10 अज़वाज हयात थी, अल्लाह अकबर, 11 कुल अज़वाज थी। एक ज़ौजा का विसाल हो गया था, हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका विसाल हो गया था। 10 अज़वाजे रसूल हयात थी। फरिश्ता जब करबला की मिट्टी लाया तो नबी ने वो मिट्टी दी उम्मे सलमा को, अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा को, कि इस मिट्टी को संभाल कर रखो। जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। दुनिया उस वक्त शायद न समझी हो कि उम्मे सलमा को ही ये मिट्टी क्यों दी, अल्लाह अकबर, किसी और को दे सकते थे। दे सकते। लेकिन ये तो खुद करबला ने बताया कि जब वाक़ए करबला हुआ तो सिर्फ एक ज़ौजा मौजूद थी, उम्मे सलमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी निगाहे नबूवत देख रही थी कि जब ये वाक़या होगा उस वक्त सिर्फ उम्मे सलमा मौजूद होगी। इसलिए उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हें ये मिट्टी सरकार ने दी। करबला से पहले सरकार ने करबला की तफसीलात बयान कर दी, करबला के जगह बता दी, हाकिम का ख़ानदान बता दिया, हाकिम की उम्र बता दी, कम उम्र आवारा, ज़माना बता दिया, 60 हिजरी का इख्तिताम, 61 हिजरी का आगाज़। और एक रिवायत वो भी है जिसमें सरकार ने उस वक्त के हाकिम का नाम भी लिया अल्लाह कि उस वक्त का हाकिम यजीद होगा। अब ये अगर किसी को रिवायतें देखनी हो तो आला हज़रत मौलाना रज़ा बरेलवी के एक खलीफा हैं क़ुत्ब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी, उनके खलीफा हैं अब्दुस्सलाम कादरी रिज़वी। सुभान अल्लाह। और ये अब्दुस्सलाम कादरी रिज़वी साहब अमीर दावत इस्लामी के मुर्शिद, वाह अमीर दावत इस्लामी के मुर्शिद वाह वाह। अब्दुस्सलाम कादरी रिज़वी साहब, उनकी किताब है शहादत नवासे सैयदुल अबरार, उसमें ये हदीस मौजूद है। उन्होंने इसको बयान किया कि सरकार ने यजीद का नाम लिया कि उस वक्त का हाकिम उसका नाम यजीद होगा। अल्लाह अकबर। अब इसके बाद कोई मुफ्ती साहब किसी दिन अचानक ये कह दें कि यजीद के मुलव्विस होने की शवाहिद नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं क्या कह सकता हूँ इसके आगे? अल्लाह अकबर। इसके आगे फिर रह क्या जाता है? करबला की पूरी तफसील करबला से पहले अल्लाह के रसूल ने बयान कर दी, और फिर ये करबला की इतनी तफसील बयान की तो अल्लाह के रसूल इस वाक़े को रोक ही लेते। नबी तो मुख्तार हैं। अल्लाह अकबर। जब नबी इतना कुछ जानते थे कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, इस ज़माने में होगा, इस जगह होगा, हाकिम का ख़ानदान ये होगा, हाकिम का नाम ये होगा, जब नबी इतनी तफसील जानते थे इस वाक़े को रोक लेते। लेकिन वाक़या तो होना था, इसलिए कि करबला को एक सिलसिला इंतहा पर पहुंचाना था। अल्लाह अकबर। करबला को एक सिलसिला इंतहा पर पहुंचाना था, और वो सिलसिला इंतहा पर क्या पहुंचाना था? वो इंतहा पर ये पहुंचाना था कि हर नबी ने इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हर नबी ने इस दीन के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, हर नबी ने इस दीन के लिए बड़ी अजियतें उठाई हैं। उन तमाम नबियों की एक अलग दास्तान है, उन तमाम नबियों की एक अलग दास्तान है। कायनात के तमाम अंबिया ने जितनी अजियतें उठाई, अलग अलग दौर, अलग अलग ज़मानों में उठाई, और किसी एक नबी ने भी जो अजियतें उठाई हैं एक वक्त में सारी नहीं उठाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को ज़िबा किया तो वो एक अलग आजमाइश थी, जब माल जिब्रील अमीन को दिया वो एक अलग आजमाइश थी,
جب آتش نمرود میں کودے وہ ایک الگ آزمائش تھی. حسین ابن علی کو کربلا میں ساری ریاضتوں کو جمع کر کے اختتام پر پہنچانا تھا. اس لیے حسین ابن علی نے کربلا میں تمام قربانیوں کو اس شان سے اپنے اختتام پر پہنچایا کہ اس سے آگے کوئی نہیں لے جا سکتا. علامہ اقبال کو کہنا پڑا غریبوں سادہو رنگی ہے داستان حرم. اللہ اکبر. غریبوں سادہو رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ اکبر. اللہ یہ اقبال ہے. یہ بات اگر میں کہتا تو جانے کتنے فتوے لگ جاتے. اللہ اکبر. اقبال نے کہا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل کی قربانی تو تم کہتے ہو بڑی قربانی ہے, یقیناً بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے, لیکن وہ ابتدا ہے, انتہا کربلا ہے. اللہ اکبر. اللہ انتہا کربلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب جان کی قربانی دے رہے ہیں صرف جان کی قربانی دے رہے ہیں. جب مال کی قربانی دے رہے ہیں صرف مال کی قربانی دے رہے ہیں. جب اولاد کی قربانی دے رہے ہیں تو صرف اولاد کی قربانی دے رہے ہیں. حسین ابن علی نے یہ تینوں قربانیاں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہے نہایت اس کی حسین. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے یہ تینوں قربانیاں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دے دی. جان کی بھی قربانی دے دی, مال کی بھی قربانی دے دی, اولاد کی بھی قربانی دے دی. پھر فرق کیا ہے؟ جہاں ابتدا تھی نبی کی برابری غیر نبی نہیں کر سکتا. نبی ہر حال میں غیر نبی سے بلند ہوتا ہے. لیکن جہاں ابتدا تھی وہاں جان کی آزمائش ہوئی, بالآخر جان بچ گئی. اللہ اکبر. مال کی آزمائش ہوئی, بالآخر مال بچ گئے. اولاد کی آزمائش ہوئی, بالآخر اولاد بچ گئی. لیکن جسے انتہا پر پہنچانا تھا اس کا نہ جان, اس کا نہ مال بچنا تھا, نہ اس کی جان بچنی تھی, نہ اس کی اولاد بچنی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب یہ انتہا پر پہنچ رہا ہے نا, سلسلہ عروج پر پہنچ رہا ہے, اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے, اب جان بھی جانی تھی, مال بھی جانا تھا, اولاد بھی جانی تھی. اور بتانا کیا تھا کہ یہ جان, مال, اولاد کوئی قربان کر سکتا ہے, کوئی قربان کر سکتا ہے. اس دین کے لیے نبیوں نے اتنی قربانیاں دیں, صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں, خلفائے راشدین نے اتنی قربانیاں دیں. لیکن ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر ساری قربانیاں جمع کر کے دے دے, ایک ہی وقت میں ساری قربانیاں دے دے. اللہ کا بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سب دے کر خسارے میں نہ رہے. اللہ اکبر. یہ سب دے کر خسارے میں نہ رہے, اس لیے کہ اس کی میراث دین ہے. اللہ اکبر. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ کربلا کے میدان میں ایک فرد نہیں ہے, وہ کربلا کے میدان میں آدم علیہ السلام کا وارث ہے, اللہ اکبر. حضرت شیس کا وارث ہے, حضرت ادریس کا وارث ہے, حضرت نوح کا وارث ہے, حضرت ابراہیم کا وارث ہے. وہ سارے نبیوں کا وارث ہے کربلا میں. اس دین کی بقا کے لیے کربلا میں وہ ساری قربانیاں دے رہا ہے, اور آنے والی انسانیت کو بتا رہا ہے کہ دیکھو کربلا کو ایک جنگ نہ سمجھنا. کربلا صرف جنگ نہیں ہے, کربلا تو ایک درسگاہ بھی ہے. کربلا کو صرف مقتل نہ سمجھنا, کربلا تو ایک مکتب بھی ہے. کربلا کو تم اگر علم سے دیکھو گے تو کربلا تمہیں علم دے گی, اگر شعور سے دیکھو گے کربلا شعور دے گی, اگر کربلا سے کردار سیکھو گے کربلا تعلیم کردار دے گی. کربلا کا دروازہ بند نہیں ہوا, کربلا اب بھی ہدایت دیتی ہے. اللہ اکبر. بے شک. اور اب بھی دنیا کو دعوت فکر ہے کہ باب حسینیت کھلا ہوا ہے, اب بھی آ جاؤ حر بن کے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. حسین ابن علی کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا, حر بننے کی گنجائش اب بھی ہے. واہ واہ واہ. جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں,
जिस जगह हुर बनाए जाते हैं वो कारखाना मेरे हुसैन का है। बेशक अल्लाह अकबर। अभी भी गुंजाइश है। करबला इंसान को मुतवज्जे करती है, क्योंकि करबला मोहसिन इंसानियत के वारिस ने बर्पा की है। करबला इमाम हुसैन को बड़ा जुल्म होगा अगर मसलकों के अंदर कैद करके समझा जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हुसैन अकबर, जैसा इमाम, अल्लाह अकबर, इसे मसलक के अंदर कैद करके समझा तो खाक समझो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मोहसिन इंसानियत का वारिस है, बेशक बेशक, सारे नबियों का वारिस है, सारे रसूलों का वारिस है, नबियों के सरदार का वारिस है। जोश मली आबादी कोई मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन एक बात उन्होंने ऐन हकीकत कही और उसका मुशाहिदा तो हम देखते भी हैं। जोश मली आबादी ने कहा कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? अल्लाह अकबर, चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, अल्लाह अकबर, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुसैन हक की आवाज़ है, हुसैन सच की आवाज़ है, हुसैन खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा के नुमाइंदे हैं। और हुसैन इब्न अली करबला में मक्तल को मकतब कैसे बनाते हैं, करबला को दरसगाह कैसे बनाते हैं कि करबला में हर उम्र का खून शामिल किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6 महीने का अली असगर का लहू करबला में है। 8 और 10 साल के औन और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबू तालिब का लहू करबला में है। हज़रत ज़ैनब की शहज़ादी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 14 साल के कासिम इब्ने हसन का लहू करबला में है। और हज़रत कासिम के एक भाई का लहू भी करबला में है, लेकिन उनका जिक्र हमारे यहाँ नहीं किया जाता, लेकिन उनका नाम हमारी किताबों में भी लिखा है, दूसरों की किताबों में भी लिखा है। शायद वो नाम वजह बन गया हो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह कासिम इब्ने हसन 14 साल और अबू बकर इब्ने हसन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हसन का बेटा हाय हाय, अबू बकर इब्ने हसन, वो करबला के मैदान में 16 साल की उम्र में शहीद हुए। ये लड़कपन का, आते हुए शबाब का लहू है करबला में। फिर करबला में जवान का लहू है, हम शक्ल पैगंबर, अल्लाह अकबर, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर, अल्लाह अकबर, हम शक्ल पैगंबर अली अकबर। फिर करबला में शबाब के इत्माम का लहू है, 33 साल अब्बास अलमदार, अल्लाह अकबर, अब्बास अलमदार। और हज़रत अब्बास के क्या कहने कि जिस घर में, जिस खानदान में अली अकबर जैसा खूबसूरत जवान मौजूद हो, वहाँ अब्बास कमर बनी हाशिम कहलाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ अली अकबर जैसा जवान मौजूद है, उस घर के अंदर अब्बास अलमदार कमर बनी हाशिम कहलाता है। बाबुल हवाइज कमर बनी हाशिम, उनका लहू है। फिर इसमें हर उम्र का लहू, हर उम्र का लहू, बच्चे से लेकर 77 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर तक, सबके लहू करबला में शामिल है। करबला 72 शुहदा की सिर्फ शहादत नहीं है, करबला एक पैगाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके हो गए थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, 72 गुमराह होंगे, 73वां तबका हक पर होगा, तो 72 गुमराह फ़िरके होंगे, एक हक पर होगा। इसका मतलब यह है कि इस्लाम में एक तबका हक पर है, 72 गुमराह हैं, तो 72 गुमराहों के लिए 72
बहत्तर गुमराह तबकात के लिए कोई तो सामान्य हिदायत हो, इसलिए हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में 72 कुर्बानियां पेश की। कि ये 72 तबकात जब करबला से रुजू करेंगे 72 शहीद मौजूद हैं रहनुमाई के लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। 72 शहीद मौजूद हैं रहनुमाई के लिए। और फिर हुसैन इब्न अली ने जहाँ हर उम्र की नुमाइंदगी करबला में रखी, वहाँ करबला में एक खातून भी शहीद हुई। अल्लाह। अब ये बातें ऐसी हैं कि आप किसी से कहिए तो लोग हैरत ज़दा होकर देखेंगे, ये क्या, ये तो कभी नहीं सुना। इसलिए मैं फिर दोबारा हवाला वही दे दूँ। हवाले मेरे पास और बहुत हैं, लेकिन लोग मुतमईन इस हवाले। वाह 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 वाह, अल्लाह दोबारा अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब शहादत नवासा सैयद अफराद उन्होंने लिखा है। अल्लाह अकबर, आला अल्लाह हज़रत के खलीफा के खलीफा अल्लाह अकबर, उन्होंने लिखा। अब मेरा काम आसान हो गया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि करबला में एक खातून शहीद हुई, और ये खातून कौन है? अल्लाह, ये हैं उम्मे वहब। अल्लाह अकबर, इनका शौहर है उमैर बिन अब्दुल्ला कल्बी, अल्लाह, इनका बेटा है वहब, जिसकी वजह से उम्मे वहब कहलाती है। अल्लाह, कूफे में थी, इंतज़ार कर रही थी कि इमाम हुसैन आएंगे कूफे में, तो फिर मैं हुसैन इब्न अली की बैअत करूँगी। जब कूफे में इब्न ज़ियाद ने मज़ालिम किए, अब ये परेशान हुई कि हुसैन इब्न अली अगर यहाँ पहुँच गए तो अहले कूफा तो मुकर गए हैं, अब क्या होगा। इत्तला मिली कि हुसैन इब्न अली कूफे आ रहे थे, लेकिन अब करबला को रवाना होगा। अल्लाह अकबर। ये खातून अपने शौहर को लेकर, अपने बच्चे को लेकर सीधी करबला रवाना हुई। अल्लाह अकबर। करबला गई, और करबला पहुँचने के बाद नवासा रसूल की खिदमत में पहुँची अपने शौहर के साथ, अपने बेटे अल्लाह के अकबर, साथ। अल्लाह अकबर, अपने बेटे को अल्लाह अकबर। बेटे को तैयार करके भेजा। बेटा शहीद हुआ। इंसान की नफ्सियात क्या है? औलाद पर खराश आ जाए माँ तड़प जाती है, अल्लाह अकबर, माँ तड़प जाती है। लेकिन करबला तो मकतब है, अल्लाह अकबर, करबला तो दर्सगाह है। माँ बेटे को तैयार करके भेज रही है कि जा हुसैन पर जान दे, अल्लाह, हुसैन पर फिदा हो जा। मैं इस जुमले को दुरुस्त कर दूँ। अल्लाह माँ कह ये रही थी कि हुसैन पर जान दे दे, असल में चाहती ये थी कि मेरे बच्चे की ही जान बच जाए। अल्लाह इसलिए कि अकबर, जो इन पर जान देगा वही तो जिंदा रहेगा, हक बात, अल्लाह अकबर, जो इन पर जान देगा वही तो जिंदा रहेगा। हुसैन पर जान देकर अपनी जिंदगी बचा ली। अल्लाह अकबर। शौहर कुर्बान किया, बेटा कुर्बान किया, शौहर कुर्बान किया। और जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को ताने दिए तो ये अपने शौहर और अपने बेटे के खून आलूद जिस्म छोड़कर ताने बर्दाश्त नहीं हुए कि यजीदियों ने जब इमाम हुसैन को ताना दिया, ये यजीदियों के खिलाफ बेतेग मैदान में चली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अब अब्दुल सलाम कादरी रिज़वी अलैहि रहमा का जुमला, वो कहते हैं कि इस खातून के आने से लश्कर यजीद में हंगामा बरपा हो रहा था कि लश्कर यजीद सोचता कि औरत पर कैसे वार करें। तो शिमर को तशवीश हुई। शिमर ने किसी से कहा कि नेज़ा मारो ताकि इस खातून का काम तमाम हो जाए। नेज़ा मारा गया, वो खातून करबला में शहीद हुई। ये खातून है उम्मे वहब। करबला में सिर्फ मर्दों का नहीं, खातून का लहू भी शामिल। अल्लाह अकबर। करबला इंसानियत की रहनुमा है, करबला इंसानियत की रहनुमा है। करबला सिखाती है कि अगर हुर का लश्कर आ जाए, पानी मांगे तो दे दो, और जब वही लश्कर पानी बंद कर दे तो ये ना कहो कि हमने तो लिया था। खुद एहसान करो, भूल जाओ, और जब वो पानी बंद कर दे तो अपना एहसान याद ना दिलाओ। अल्लाह। और जब वही हुर शर्मिंदा होकर आ जाए
तो गले से लगा लो और सैयदा ज़ैनब फरमाएं कि हुर जन्नत में मेरा पहला मेहमान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जन्नत में मेरा पहला मेहमान हुर होगा। यह है करबला। करबला रिश्ते सिखाती है, करबला इंसानियत का बेकार सिखाती है, करबला इंसानी अक़दार सिखाती है। करबला बताती है कि ये तारीख़ का गुमगश्ता वाक़या नहीं है। करबला वो सच्चाई है जो क़यामत तक के इंसानों के लिए कारे रहनुमाई करती रहेगी। बस इख्तिताम इस पर कि हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में ये सब कुछ करके चाहते क्या है? चाहते ये है कि नबी का दीन बन जाए। क्योंकि यजीद कह रहा है कि मेरे हाथ पर बैअत कर। हुसैन इब्ने अली जानते हैं कि मैंने अगर नबी के नवासा हूँ, मैंने अगर बैअत कर ली यजीद के हाथ पर, तो ये हक की बैअत जुल्म के हाथ पर हो जाएगी, बातिल के हाथ पर हो जाएगी। इसलिए इमाम हुसैन ने जान दे दी, बैअत न की कि दीन की हिफाजत रहे। जंगों में कामयाबी नाकामी का मयार ये नहीं होता कौन मरा किसने मारा, मयार ये होता है जब दो कुव्वतें टकराई मकसद किसने पाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यजीद बैअत लेना चाहता था, कत्ल करके भी मकसद नहीं पा सका। अल्लाह अकबर। हुसैन बैअत नहीं करना चाहते थे, जान दे दी, मकसद पा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मकसद पाले वो कामयाब है, जो मकसद पाले वो फतेह याब है। करबला में जीत हुसैन इब्ने अली की है और उस जीत का ऐलान रोज़ाना मस्जिदों से होता है। जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो ये इमाम हुसैन की जीत का ऐलान है। बेशक बेशक। आवाज़ अज़ानों की जो हर सू है जहाँ में, शब्बीर तेरा वक्त जिगर बोलता है। अल्लाह अकबर। आज दीन है, ये जीत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। बेशक। आज दीन अपनी असल शक्ल में है, ये एहसान है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि उनके बख्शत बेयकीना वा यकीन, अल्लाह अकबर। उनके लज़्ज़त अस्सुजूदे ज़मीन। हुसैन वो जिसने बेयकीनों को दौलत यकीन बख्शी, जिसके सजदे से ज़मीन लरज़ गई। अल्लाह अकबर। उनके ज़ेरे तेरो हुयत ला इलाहा, उनके अज़ख़ूनश हुयत ला इलाहा, जिसने तलवार के नीचे भी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसके खून के हर कतरे से ला इलाहा इल्लल्लाह की बहारें फूटी, वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस है वो हुसैन, जिसके लिए गरीब नवाज ने कहा था हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद वहदानियत है। वहदानियत का अकीदा अंबिया ने पहुँचाया, अंबिया का पहुँचाया हुआ अकीदा सरवरे कौनैन ताजदारे अंबिया ने पहुँचाया। उस अकीदे का मजहर है करबला, उस अकीदे का मजहर है करबला। और तौहीद की जलवा गाह है मक्का। यजीद ने काबे पर हमला करके बताया कि वो तौहीद का पर हमला आवर हुआ है, तौहीद पर हमला करने वाला है। तो जो तौहीद का दुश्मन हो उसे जो जान देकर अकीदा तौहीद बचा ले, उसके लिए गरीब नवाज कहते हैं हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन नहीं है, पाकिस्तान की बुनियाद भी हुसैन है। अल्लाह अकबर। बेशक। पाकिस्तान की बुनियाद भी हुसैन है। क्यों? इसलिए कि तहरीक पाकिस्तान का मशहूर नारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। पाकिस्तान की बुनियादों में हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान की बुनियादों में हुसैन है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन इब्ने अली। हुसैन वो हैं जिन्होंने करबला को उस मंजिल पर पहुंचा दिया। अब कायनात का कोई शख्स
किसी मुसीबत से गुजरे, जब करबला को देखेगा उसे अपनी मुसीबत कम महसूस होगी। अल्लाह अकबर, यह अल्लाह है करबला। अल्लाह अकबर, कोई किसी गम में हो, जब करबला से रुजू करेगा उसे अपना गम छोटा लगेगा। अल्लाह अकबर, कोई किसी कयामत से गुजर जाए, अल्लाह जब करबला को देखेगा उसे अपनी परेशानी छोटी अल्लाह लगेगी। अगर किसी का बाप मर जाए, किसी का भाई मर जाए, बहन मर जाए, बीवी मर जाए, बेटी मर जाए, कोई साहनेहा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, रुजू करे करबला से अपना गम छोटा लगेगा। अल्लाह अकबर, किसी पर कोई मुश्किल आ जाए, जब करबला से रुजू करेगा, करबला उसकी मुश्किल से ऊपर नजर आएगी। अल्लाह यह है करबला, यह है करबला। तन्हा हुसैन इतना मुश्किलों से गुजरा अल्लाह कि अब अकबर। कयामत तक अक़वाम आलम जितनी मुसीबत से गुजर जाएं, करबला से मुश्किल कम हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी की मुश्किल करबला तक नहीं पहुंचेगी। अल्लाह बस करबला बेसहारों का सहारा है। बेश, मुश्किल में डूबे हुओं के लिए एक दिलासा है। करबला हक की मीज़ान है। अल्लाह। करबला नबी के वारिस की जलवागाह है। करबला से वाबस्तगी एक शहर से वाबस्तगी नहीं है, अल्लाह। हक से वाबस्तगी है, सच से वाबस्तगी है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में, आमीन, कब्र में आमीन। और हश्र में आमीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलामों में आमीन। रखे। इसलिए कि हम दुनिया में भी कहते हैं आमीन। शाह हुसैन, आमीन, आमीन, कब्र में भी हमारा शाह हुसैन है, इंशाअल्लाह। और हश्र में भी हमारा इंशाअल्लाह। शहंशाह हुसैन है। इंशाअल्लाह, हमारी आमीन। नबी। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं।